Hello, guys. Welcome to Zenith Educational Academy. And today I have to begin a new topic that is determiner. In the previous videos, I have discussed about so many topics regarding to the REIT exam, just 2025. And I also discussed about some questions relevant to the topic that I have discussed with you all. So our today's topic is one of the most important topic related to the exam of REIT 2025, that is determiners. And we are very aware about the determiner, and it is not a new thing for us in English language, or you can say English grammar. But we have to discuss something here to point of view, just to share our ideas to clarify about the determiners. What is it? Actually, what happens if we discussed about the determiners? So, determiner is not a part of speech. Keep it in mind first. Determiner parts of speech nahi hai. Yes, it is just a word. You can say determiners are words used at the beginning of the noun phrases and adjectives. But it is not part of a speech like noun and adjectives. Determiners words हैं जो सिर्फ noun phrases and adjectives के beginning में या कह सकते हैं फ्रंट में स्टार्टिंग में यूज होते हैं ओनली टू गिव द रेफरेंस और एक्सप्रेशंस द मीनिंग क्लियरली ऑफ द phrases, वो चाहे नाउन फ्रेज हो या एडजेक्टिव हो. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वी मस्ट हैव टू नो कि डिटर्मिनर यूज क्यों किया जाता है. ओनली गिव द रेफरेंस विच, एंड यू कैन से हाउ मेनी एंड हाउ मच. डिटर्मिनर सिर्फ इसलिए यूज होता है टू क्लैरिफाई व्हाट वी आर टॉकिंग डिस्कसिंग. Yes, in English, use of noun phrases and adjectives means which, how many, and how much. But how come to the examples? You know, the example is the manager. Yes, so manager, that is a noun, but that is a determiner, or you can say it is a article determiner. Okay, so the manager means if I say I want just to meet the manager. So it means it is clearly if the listener knows very well to whom I want to meet. Yes, it means which. It means which manager. Yes, to whom. Next is a nice day. So nice is adjective, day is a noun. And use are here, that is a determiner. We can say article. Next is my fat old cat. So fat, yes, old cat. Yes. So what is the fat here? Yes, you can say fat is a noun, old is adjective, cat is again a noun, but my is a determiner. Yes, we will discuss what kind of determiner it is. Like da जो है वो क्या है? Definite है. आ जो है indefinite है. और my क्या है? Possessive है. Okay. Next is this house. So again we discussed about a house. It means which house? Suppose there should be the interaction, clear expression between speaker, listener, reader, and writer. It means to whom, which I know. So this house is a noun, we know very well, but this is a determiner, or you can say it is a demonstrative article. Some problems, so problems it is a noun, but some is again a kind of determiner, and it is called just quantifier determiner. वो article determiner है, ये क्या है? Quantify, because it talks about quantity. Next is either arm. So arm is a noun, we know very well. Either, that is a determiner to modify to arm, that is a noun. Every week, to week is a noun, every is a determiner. Enough oil is a noun, enough is a determiner. Several young students, so young is adjective, students are noun, plural noun, and several is determiner. So we can see how we use the different determiners. Sometimes definite, indefinite, possessive, and sometimes we have quantifiers. So that is only brief introduction. We will discuss in details about article determiner, quantifier determiner, yes, possessive determiner, demonstrative determiner. We will discuss it. Don't worry. So it means determiners can be divided into two main groups.
इसको दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? नंबर वन आर्टिकल्स, नंबर टू इज क्वांटिफाइज। क्यों डिटर्मिनर्स को सिर्फ दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक आर्टिकल है, दूसरा क्वांटिफायर। आर्टिकल में क्या क्या आता है? सपोज यू हैव definite versus indefinite article, तो a and n it is indefinite article and the क्या है? definite article. Next, इसी में आता है possessive article. Possessive means showing something relation. जैसे इसमें क्या होता है? my, your, his, her, yes, their, etc. And that is demonstrative article. Article, it means it is a part of determiner, you can say. Yes, article is a group of words. You can say article is not only one article, sometimes possessive article, sometimes definite, indefinite, demonstrative. It is a group of words. But the words belong to a particular group that is called determiner. ये भी वर्ड्स हैं, लेकिन जो वर्ड्स एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं डिटर्मिनर। सो जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? दिस, दीज, दोज, दैट। Next is quantifiers. Quantifiers know very well what happens. It tells the quantity. Yes, quantity of the nouns. Because noun की ही quantity बताई जा सकती है, क्योंकि noun में भी singular और plural. एक है तो singular है, एक से ज्यादा है तो plural है. Yes, if I say yes, boy, it is singular, it means one, and boys, plural means more than one. So quantifiers बात करता है जैसे all, some, few, each, much, several, enough, etc. Yes. So next we come to that. We have two articles discussed, definite and indefinite articles. Sometimes we have a word no article, and ये zero article भी कहा जाता है. Two articles means we know that is definite article, indefinite article, or you can say demonstrative article, or you can say possessive article. लेकिन sometimes is no article or zero article. आप ये डिस्कस करेंगे कि नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल क्या होता है। जस्ट मैं ब्रीफ में बता देता हूं। नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मींस कि प्लूरल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस के लिए हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। इट मींस जिन नाउंस के लिए आर्टिकल यूज नहीं किया जाता उसको कहते हैं जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। यस, सपोज जैसे अनकाउंटेबल नाउन है। यस, लाइफ, लाइफ इज अनकाउंटेबल नाउन। इफ आई से लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज करेक्ट। आई कांट से द लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। तो लाइफ के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, चाहे वो डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो। द लाइफ, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, इसी तरीके से हम क्या, इट मींस टू आर्टिकल्स हैव अ डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन मीनिंग्स। डेफिनिट है तो डिफरेंट मीनिंग है, इनडेफिनिट है तो डिफरेंट मीनिंग है, पॉजेसिव है तो डिफरेंट मीनिंग है, और डेमोन्स्ट्रेटिव है तो डिफरेंट मीनिंग है। जिस मीनिंग में भी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, ये डिपेंड करता है नाउन पे कि नाउन एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट नाउन है। सो फॉर एग्जांपल द आर्टिकल जो है, इट मींस इट हैज वन एक्सप्रेशन, एंड ए एन और एन इट हैज डिफरेंट एक्सप्रेशंस। सो द आर्टिकल कहां यूज होता है, ए और एन आर्टिकल कहां यूज होता है, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स विद द एग्जांपल्स। सो we have discussed a brief introduction of the determinants. Now come to the examples of with the and other articles too. Okay, come to the examples with the different expressions or different meanings of the determinants. So example is on the radio. Number one is, so that is article, that is definite article, come to the beginning of a noun. So if I use the another example with the same concept, that is on TV. So I do not use the article here, even definite, indefinite article, any one of them. So what happens, that is called zero article, or can say no article. Yes, and we have used a definite article. It means जहां definite article use हो रहा है, indefinite article use हो रहा है, उसका expression meaning different है with no article. So it means on the radio, it means there is a specific radio, there is a definite fixed, there is no issue of that. But on TV means any TV. Yes, there is not name of any particular specific specialized TV. It is not fixed. It is in general, it is in common way. But if somebody says on the radio, it means there is a fixed radio. It may be Philips radio, it may be any other company, किसी एक particular company का, जो इट मीन्स एक दूसरे जानते हैं। सपोज लिसनर स्पीकर जानते हैं कि विच रेडियो वी आर यूजिंग। सपोज अगर कोई फिलिप्स का रेडियो यूज कर रहा है, तो
आर्टिकल जो द यूज किया गया है तभी यूज करेंगे जब स्पीकर लिसनर उसके बारे में अवेयर हैं कि विच रेडियो वी आर यूजिंग, अंडरस्टूड, एंड हाउ मच एंड हाउ मेनी। यस, अगर हम आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज जीरो आर्टिकल है या कह सकते हैं नो आर्टिकल है, इसका मतलब है कि स्पीकर नोज द टीवी बट लिसनर नहीं जानता है कि विच टीवी स्पीकर इज यूजिंग, वो नहीं जानता है। आर्टिकल इसलिए यहां पे यूज नहीं किया गया है क्योंकि स्पीकर जो टीवी यूज कर रहा है, लिसनर उसके बारे में नहीं जानता है कि वो किस कंपनी की टीवी यूज कर रहा है। दैट इज डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। इसी तरीके से आई हैव गॉट यस बैक एक, या कोई आर्टिकल नहीं है। यस आई हैव गॉट आ यस हेडेक। सो यू नो आई हैव गॉट बैक एक मीन्स यस ओनली द पर्सन हु हैज बैक एक नोज इट, बट दूसरा बंदा नहीं जानता है कि जो स्पीकर है या जो रीडर है कि उसको बैक में क्या प्रॉब्लम है, यस बैकअप है कि नहीं है। यस, नेक्स्ट इज आई हैव गॉट अ हेडेक। अब ये मतलब हो गया है कि हेडेक मींस कि लिसनर जानता है या राइटर रीडर सब जानते हैं कि somebody हैज हेडेक, इसीलिए यहाँ पे क्या है इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज किया गया है। एंड इनडेफिनिट आर्टिकल ऑलवेज यूज्ड फॉर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, or you can say singular nouns, but not plural. Next is we took a wrong turning and went to the wrong. अब we means that is a plural, you can say we क्या plural है जिस, and we took a wrong turning। अब यहाँ पे आज जो आर्टिकल है that is indefinite article। अब दो लोग हैं, स्पीकर है लिसनर है, वो एक दूसरे जानते हैं कि हमने क्या है रॉन्ग टर्निंग ले लिया है, रॉन्ग टर्न ले लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया आर्टिकल यूज किया गया है। नेक्स्ट इज एंड वेंट टू द रॉन्ग एड्रेस। अब ये भी जानते हैं स्पीकर लिसनर दोनों जानते हैं कि उन्होंने पहले तो रॉन्ग टर्न लिया, अब वो रॉन्ग एड्रेस पे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ स्पीकर जानता कि आई टुक रॉन्ग टर्न और लिसनर नहीं जानता, इट मीन्स वहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते। दैट इज अ बेसिक डिफरेंट इन द एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सप्रेशंस यू नो वी हैव द पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस। जिस तरीके से डिस्कस किया कि पजेसिव डिटरमिनर्स, पजेसिव आर्टिकल्स लाइक माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स, sometimes they have a function of the possessive adjectives and possessive pronouns, but in case दोनों जो हैं वो यूज करे जाते हैं possessive pronouns के because it stands for the noun phrases। in case of both are used for the noun phrases, yes, क्योंकि इसकी जगह पे यूज किए जाते हैं, that is a very common thing, but we are discussing here about the determiners। so अगर हम articles की बात करें, articles, yes, articles may be definite article and indefinite article। तो डेफिनेट में भी द और दी, मैं डिस्कस करूंगा कि द कहां यूज होता है और दी कहां यूज होता है। जस्ट डिफरेंट बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन, जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। मान लीजिए अगर नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तब तो द यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट लेटर वर्ड का वोवेल है तब हम दी कहेंगे। लाइक द बॉय इज राइटिंग अ बुक। इफ आई से द एलिफेंट, अब एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है वोवेल है, यस एलिफेंट ई, इसलिए हम दी कहेंगे उसको, द एलिफेंट इज ईटिंग द ग्रास। सो दैट इज बेसिक डिफरेंट। नेक्स्ट यस एंड, अब ये जो दोनों जो है डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो जिस ग्रुप में यस रहते हैं उसको कहते हैं डिटरमिनर्स। यस, तो आई होप अंडरस्टूड। डिटरमिनर्स मींस दे आर वर्ड्स included definite, indefinite, demonstrative, possessive words and used to the beginning of the noun phrases and adjectives। अब हम बात करेंगे why are articles used for। articles use क्यों किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, because sometimes we do not use any article but sentence is perfect and sometimes we must have to use article to just prefer the sentence meaningful and in effective way for communication। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंस में कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं फिर भी सेंटेंस परफेक्ट होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए आर्टिकल को यूज करना जरूरी है। इसलिए कहने के आर्टिकल्स को क्यों यूज किया जाता है। नंबर वन इज टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइबल थिंग्स। नंबर वन इसलिए यूज किया जाता है आर्टिकल्स को कि जो स्पीकर लिसनर है रीडर राइटर है, ठीक है, वो चीजों को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करें या करते हैं या कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट वे। नंबर सेकंड कह रहा है कि नोन बोथ
टू द स्पीकर राइटर एंड लिसनर हियरर, कि स्पीकर लिसनर या स्पीकर हियरर या रीडर राइटर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो दोनों चीज एक दूसरे को जाने। जस्ट व्हेन दे कम्युनिकेट टू ईच अदर दे मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट द थिंग्स। अब उसके बाद होते हैं लैंग्वेजेस यूज आर्टिकल्स, कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आर्टिकल्स यूज करती हैं। यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ वर्ल्ड में मोस्ट इस मैक्सिमम मोर देन 6,000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इन द वर्ल्ड 6,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और इंडिया में आई होप मोर देन 1,600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बट सारी लैंग्वेजेस में आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। सो जिन लैंग्वेजेस में आर्टिकल्स यूज होते हैं, आई सिलेक्टेड सम लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, स्वीडिश, इटालियन, ग्रीक, यस, नॉर्वेजियन एक्सेट्रा। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें आर्टिकल्स यस रेगुलरली या कॉमनली यूज होते हैं। और कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं? इट मींस लैंग्वेजेस डू नॉट यूज आर्टिकल्स। वो कौन सी है? रशियन और जापानीज। रशियन एंड जापानीज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट आर्टिकल्स इन लैंग्वेजेस में सेंटेंस परफेक्ट नहीं है। दैट इज नॉट just correct according to the perspectives of the speakers. Yes, कुछ लैंग्वेज में आर्टिकल्स यूज की जाती है, कुछ में यूज नहीं की जाती। इट इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज yes perspectives. Okay, so now come to the basic information about the determiners, कि इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन के अगर हम बात करें, इट मींस डिटरमिनर्स कैन बी यूज्ड इन जनरल एंड डिटरमिनर कैन यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। अगर जनरल की बात करें, टॉकिंग इन जनरल, अगर हम जनरल की बात करें, नॉट अबाउट स्पेसिफिक पर्पस, सो ये कह रहा है कि डू नॉट यूज डेफिनिट आर्टिकल दैट इज द और दी विथ अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। अगर आप जनरल में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इट मीन रूल सेज, बेसिक इंफॉर्मेशन सेड, do not use definite article the or the with uncountable or plural nouns. Uncountable nouns, you know very well, that cannot be counted, like water, oil, yes, life, yes, that is fever, belief, yes, they are uncountable nouns. Agar sentence say life is complicated, so we understood life is what? Yes, we know life is complicated means life is uncountable, that is can't be counted. So it means if I said the life is complicated, अगर life के साथ आप in a journal डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं, जो आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, इट मींस ये सेंटेंस सही नहीं है, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस, बिकॉज basic information says, rule says in English language, when we discuss in general, do not use definite article the determiner with uncountable और plural nouns। देखिए लाइफ जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, तभी हम इसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आ लाइफ नो, एन लाइफ नो, द लाइफ नो। नेक्स्ट इस प्लूरल की बात करते हैं। दिस माय सिस्टर लव्स हॉर्सेस। अब हॉर्स इज सिंगुलर एंड हॉर्सेस बिकम्स प्लूरल। यस, अब इसमें देखिए प्लूरल के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं की गई है, वो चाहे डेफिनिट हो या इनडेफिनिट आर्टिकल हो। नेक्स्ट इज माय सिस्टर लव्स द हॉर्सेस। अब अगेन आई यूज्ड द, ये जो डेफिनिट डिटरमिनर है, आर्टिकल है जो प्लूरल के साथ आया है। अगेन रूल सेज इट इज नॉट करेक्ट इन इंग्लिश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कीप इट माइंड कि इन अ जनरल वे डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल यस कभी भी प्लूरल नाउंस या अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज नहीं करते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि अगर हम किसी की जॉब के बारे में बात करें, टॉकिंग अबाउट जॉब्स, क्लास, ग्रुप, जिस अगर किसी ग्रुप, किसी क्लास या किसी जॉब के बारे में बात करें, या वी आर टॉकिंग अबाउट जिस समबडी और समथिंग बिलोंग्स टू, या व्हाट वी यूज समथिंग फॉर, या कोई किसी क्लास से बिलोंग करता है, किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर हम उसके बारे में बात करें, ये एक स्पेसिफिक हो जाएगा, इट इज स्पेशलाइज्ड। यस, किसी का क्लास, किसी की कास्ट, किसी का कलर, किसी की जॉब, या कोई किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट इज स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड। ये अब क्या है? जनरल नहीं है, इट इज नॉट कॉमन। सो इट मींस नाउ वी हैव यूज्ड द इंडेफिनिट
आर्टिकल। अब इन केसेस में क्या है, हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे बट नॉट डेफिनिट आर्टिकल। कीप इट माइंड, जब हम किसी की स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, किसी क्लास के बारे में बात करेंगे, किसी की कास्ट के बारे में बात करेंगे, रिलीजन के बारे में बात करेंगे, कलर के बारे में बात करेंगे या रेस के बारे में बात करें, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। कैसे? इफ आई से शी इज अ डेंटिस्ट, यस, तो डेंटिस्ट इज अ काइंड ऑफ अ जॉब। इट मीन्स yes, somebody who is working in a dental college, like specialization क्या है उसका, yes, he is a dentist. So dentist के साथ क्या है, एक आर्टिकल यूज करेंगे, that is called indefinite article, a dentist. Understood? क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। a article is used for the singular nouns but not plural. Plural के लिए कभी a and n यूज नहीं होता है, ठीक है। If I say she is dentist, अब देखिए डेंटिस्ट का एक स्पेशलाइजेशन है, एक एरिया है, एक फील्ड है, तो इस नाउन के साथ में एक आर्टिकल का होना जरूरी है जो इंडेफिनिट आर्टिकल हो। यस, सो आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। इसको नहीं कहना है शी इज डेंटिस्ट, करेक्ट क्या है, शी इज अ डेंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यस टू ब्रिंग अ ग्रैंड मदर। अब क्या है, ग्रैंड मदर क्या एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती है, ग्रैंडफादर, ब्रदर, यस, एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो। सिबलिंग, यस, जैसे सिबलिंग का, स्पाउस का, पेरेंट्स का है, ये ग्रैंड पेरेंट्स में आती, ग्रैंड मदर क्या ग्रुप है। यस, सो ग्रुप है तो इसका मतलब वी मस्ट हैव यूज एन आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर इसको हम विदाउट आर्टिकल कहें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस इज नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश टू कम्युनिकेट, परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई यूज्ड माई शू, यस, अब ये देखिए माई एज अ हमर, ये भी आर्टिकल है और माई भी आर्टिकल है। माई क्या है, पजेसिव आर्टिकल है, और आ क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब हमर क्या है, यस, हमर इज आल्सो अ काइंड ऑफ टूल, जो क्या एक स्पेसिफिक टूल है, एक स्पेशलाइज्ड टूल है जिसको हम यूज करते हैं, पीपल यूज्ड इट। सो इसका मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, जैसे कोई प्लेस है जो एक स्पेशलाइज रखता है, एक स्पेसिफिक प्लेस है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज एन आर्टिकल। तो आ इज आर्टिकल हियर। अगर हम इसको विदाउट आर्टिकल यूज करें, आई यूज्ड माई शू एज हमर, तो एज हमर तो यूज हो रहा है बट आर्टिकल इसमें यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो गया है कि यस, वेरी अंडरस्टूड, अगर हम किसी ग्रुप, किसी क्लास की बात करें तो उसके साथ में जो नाउन आएगा उसके साथ एक आर्टिकल का होना जरूरी है, वो इंडेफिनिट आर्टिकल ए हो या एन हो। यस, और जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज करें या प्लूरल नाउन्स को यूज करें तो उनके साथ कोई आर्टिकल, इट मींस व्हाट हैपेंस, कोई आर्टिकल नहीं आएगी, जिसको कहते हैं नो आर्टिकल, या कह सकते हैं जीरो आर्टिकल, में देयर इज नो आर्टिकल। So it is a basic information about the determiners. In the next video, I'll discuss about some other informations regarding to the determiners and what are the common mistakes the people or students or teachers are doing when communicate with somebody. हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है अबाउट आर्टिकल्स, और सम मिस्टेक्स क्या है, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, 4 कॉमन मिस्टेक्स जो हम रेगुलरली करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन में। उसके बाद हम डिटेल्स में आएंगे, यस, आर्टिकल्स, इट्स यूज विद डिफरेंट एग्जांपल्स। हम पजेसिव आर्टिकल्स की बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स की बात करेंगे, डेफिनिट की बात करेंगे, इनडेफिनिट की बात करेंगे, एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द क्वांटिफायर आर्टिकल्स और क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। So I hope you understood today's in video. So if you have any doubt, please, yes, tell me in the comment box, ask me the questions, give the feedback in the comment box, and share the video, like the video, and subscribe my channel. Thank you so much.